Very good afternoon. Today on the Indian Correspondent Talk Show, we have Meenakshi R. Sharma. Namaskar. Namaste, Meenakshi ji. Namaskar. Meenakshi ji is a certified holistic healer, treats people using different kinds of alternative healing like Reiki, Sujok, dowsing, Reanime therapies, Theta healing, crystal healing, graphology. And she has done few certifications under International Sujok Association, Reanime Foundation Mexico, Think Tank USA, and has been trained under experts in additional therapies. It's a pleasure to have you, Meenakshi ji, on the Indian Correspondent Talk Show. Thank you. Completely my pleasure, Rahul ji. Thank you for inviting me. Thanks, Meenakshi ji. I will start with the Reiki. In some of the, on a high level, let's see what are these holistic treatments, what sort of procedure and they in general are having commonality like. So let me start with the first thing first. Holistic means complete a wholesome healing process on the body, mind, soul and emotional level. So let us start, Meenakshi ji, with Reiki. What is Reiki and what is the procedure of Reiki? Reiki is a Japanese healing procedure technique in which there are two things involved, Rei and Ki. Rei means higher consciousness and Ki means life force energy. So when we are treating a patient through Reiki, we the healers, the Reiki healers are the channel from the higher consciousness, life force. We get channeled with that and we pass it on to the body of the patient through our hands, and that the person gets relief in stress, pains or any problem, bodily, mental issues, कोई भी issue हो, किसी भी तरह से लेकर आ रहा है, उसको आराम मिलता है. और ये complete procedure रहता है 21 days का, 11 days का, या depend करता है क्या problem लेकर आ रहा है. Thanks, Meenakshi ji. What about Sujok? Sujok Korean therapy है. Professor Park Jae-woo ने is the founder, creator of Sujok, और he is no more now. But Professor ने ये Su means hands and Jok means पैर, हाथों और पैरों के combination को लेकर के holistic healing technique पूरी create करी है, जिसके अंदर हम magnets, color और सीड्स को लेकर के इस्तेमाल करके विदाउट एनी मेडिकेशन सिर्फ बॉडीली लेवल के ऊपर काम करके होलिस्टिक हीलिंग्स प्रोवाइड करते हैं. चाहे वो बॉडी इश्यूज़ हो, ऑर्गन रिलेटेड हो, चाहे वो मेंटल इश्यूज़ हो किसी के, चाहे इमोशनल फ्रंट पे इश्यूज़ आ रहे हों, या लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे फिनेंसेस हो, रिलेशनशिप हो, सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप्स हो, उसके इस तरह से पूरी हीलिंग प्रोवाइड करता है सुजोक. Thank you, Meenakshi. Next is dowsing. Meenakshi ji, what is dowsing and what is the procedure of dowsing? डाउजिंग बहुत पुरानी टेक्निक है, हज़ारों साल पुरानी. जब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करते थे ये पता करने के लिए कि ज़मीन के नीचे पानी कहाँ है, मिनरल्स कहाँ हैं, गोल्ड कहाँ है, तो डाउजर्स यूज़ किए जाते थे. रॉड्स, पेंडुलम, चेक क्रिस्टल्स हों तो उनके थ्रू पता किया जाता था एनर्जीज़ कहाँ पर हैं, और आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर एरिया को वहाँ खुदाई हुआ करती थी और पानी मिल जाया करता था, मिनरल्स मिल जाया करते थे. आज लिमिटेड नहीं है डाउजिंग सिर्फ वहाँ तक. आज डाउजिंग बेसिकली हम सिक्स सेंस को यूज़ करते हैं. हम सबके पास सिक्स सेंस है. राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो हमारा हेमिस्फीयर है राइट साइड का, उसको हम उसकी हेल्प से आंसर्स फाइंड आउट करते हैं लेयर्स पे जा करके. और जैसे हम गूगल पे जाते हैं सर्च करने के लिए ऑप्शंस हमारे लिए क्या बेस्ट है, वैसे हम अपने सिक्स सेंस को यूज़ करते हैं इन विद द हेल्प ऑफ एनी टूल. हो सकता है कोई रॉड्स को यूज़ करे, हो सकता है कोई पेंडुलम क्रिस्टल पेंडुलम्स को यूज़ करे, मेटल पेंडुलम्स को यूज़ करे और आंसर्स ढूंढे. अपनी लाइफ के चीज़ें खो जाती हैं वो ढूंढना, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है. इन्फिनाइट एरियाज़ में हम इसका काम ले सकते हैं और ये मदद करता है.
Thanks, Meenakshi ji, on updating our audience on dowsing. Next is reanimation. में एक फ्रेंच हीलर हैं, फ्रेंच ओरिजिन के हीलर हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती है। होलिस्टिक हीलिंग्स है उनकी भी, और वो लाइट के साथ, लाइट द डिवाइन लाइट के साथ काम करते हैं। और उनकी थेरेपीज़ किसी भी तरह के पेन, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो इंसान को हैं, बॉडीली इश्यूज, स्पेशली डिजीज़ेस जहाँ पे हम बात करते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ हिज हैंड्स ऑन 3 बेसिक पॉइंट्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को अलाइन करके उनकी थेरेपीज उन्होंने जो डिस्कवर की हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हैंड पोजीशंस होती हैं 2 या 3 जगह पर, उसके थ्रू एनर्जी और हीलिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स, मिराकुलस रिजल्ट्स। Theta healing. What is theta healing? Theta healing is a very well-known practice. Founder is Vienna Stibble from Montana, USA, और इसके अंदर ये भी एक complete philosophy है, टेक्निक है, जिसके अंदर हम अगेन होलिस्टिक हीलिंग्स प्रोवाइड करते हैं। और इसमें हर इंसान की सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स जो होता है, हर इंसान में कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती है, उसको उतना सक्सेस नहीं मिलता लाइफ के अंदर, उतनी खुशी, उतनी हेल्थ नहीं मिलती। उस लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करके, उसको डिलीट करके नए बिलीफ्स को डाउनलोड किया जाता है सबकॉन्शियस लेवल पे, और उसको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सक्सेसफुल इन मैनी एरियाज। Crystal healings we have heard a lot, and जी. we see in movies and other shows also. जी. How about that impact and procedure? And क्रिस्टल्स आर वेरी डियर टू मी, और ये नेचुरली मेरे पास आया, या कह लीजिए इट्स अ ब्लेसिंग। और क्रिस्टल्स बहुत आज की बात नहीं है, बहुत पुराने समय से हिंदुस्तान के अंदर भी लोगों को पता है कि हीरा, पन्ना और हर तरह के पुखराज, इस तरह की चीज़ें तो सुनी ही होती हैं, लेकिन नेचुरल क्रिस्टल्स ये बहुत हाई डिफाइंड क्रिस्टल्स हैं जिनके बारे में मैंने बात किया। नेचुरल क्रिस्टल्स इजीली अवेलेबल होते हैं लोगों को और हील करते हैं। हीलिंग प्रोसेस जो चल रहा होता है, जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं इंसान की लाइफ के अंदर, वहाँ अपनी वाइब्रेशंस के साथ अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट करते हैं पेशेंट की। सपोज जिस भी इंसान के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसकी एनर्जीज के साथ चैनलाइज करके उसको ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं। तो क्रिस्टल्स इस तरह से आप कह सकते हैं एक तरह से बेस्ट फ्रेंड है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करे, जो कुछ डिमांड नहीं करते, बस सिर्फ देते हैं। thanks. And what about graphology? ग्राफोलॉजी अगेन इज़ अ वेरी ओल्ड आर्ट। इसके अंदर बेसिकली आप थ्रू द हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्सन you can analyze what is the problem of that person, where is he going wrong, why is he not able to achieve what he wants to, और कहाँ पर उसकी लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं या आए हुए हैं और उसे पता भी नहीं है। तो हैंड राइटिंग के थ्रू, क्योंकि हैंड राइटिंग में हमारी वही आती है जो हमारा सबकॉन्शियस बिलीव करता है, और वो हैंड राइटिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और आप सिग्नेचर चेंज करवा सकते हो, इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है, जैसे आपने सुना भी होगा कई जगह पे लोगों ने चेंज कराया है। और हैंड राइटिंग एनालिसिस कराने के बाद जहाँ पे उस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, वो उसकी क्योर पूछ सकता है। देयर आर वेज उसकी एनालाइज करके उसको क्योर करने के तरीके हैं, उनको करके डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होता है लोगों को। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, एक नया, जो काफ़ी कारगर भी है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। Thanks, Meenakshi ji. Additionally, any additional therapies you are under getting expertise and interest? जी, बहुत सारी हैं, जैसे कि बैचलर रेमेडीज़ के बारे में भी आपने सुना होगा। डॉक्टर बैच ने इसको डिस्कवर किया था, और वो खुद एक फिजिशियन थे, और उनको ऐसा लगता था कि जब दवाइयाँ कोई इंसान लेता है तो वो सिर्फ बॉडी को हील करता है, और वो भी कुछ समय के लिए, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब वो नेचर के थ्रू अपने आप को हील करने की कोशिश करता है होलिस्टिक तरीके से, स्पिरिचुअल लेवल पे, तो ना तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसको बहुत
अंदर तक जा कर के, कह लीजिए सबकॉन्शियस लेवल पे जा कर के फ़ायदा होता है और ज़िंदगियां बदल जाती हैं। तो ये भी ऐसे कई सारी हीलिंग्स हैं, ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज़ हैं, मोडालिटीज़ हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ और बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस हैं और मैं खुश हूँ कि लोग ठीक हो रहे हैं बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। Happy to hear about it, मीनाक्षी जी। And are there any side effect of all these therapy? जैसे हम एलोपैथी ऐसे मेडिसिन लेते हैं, मॉडर्न मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट। What about these treatments नहीं। from these therapies? किसी भी ऑल्टरनेटिव होलिस्टिक स्पिरिचुअल हीलिंग में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता सिवाय इसके कि या तो फ़ायदा होगा या फ़ायदा नहीं होगा, और वो नहीं तभी होता है जब या तो वो इंसान जिस पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो पेशेंट है, उसके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं और वो इतना प्रोटेक्टेड फील करता है कि वो उनको छोड़ना नहीं चाहता, डरता है, विश्वास नहीं करता खुद के ऊपर कि वो ठीक हो सकता है, Right. या वो चाहता ही नहीं है ठीक होना। सिर्फ इन्हीं दो केसेस में वो ठीक नहीं होता, नहीं तो ज़्यादातर हमें अच्छे ही रिजल्ट्स मिलते हैं और काफ़ी पॉजिटिव रिलीफ और टेस्टिमोनियल्स भी मिलते हैं लोगों को। आजकल we can see that chronic और acute जी जो लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस प्रॉब्लम, डिप्रेशन या मेंटल फिजियोलॉजिकल इश्यूज हैं या एकदम से जो आते हैं कई बार बिकॉज ऑफ सम इवेंट, तो ये दोनों के लिए इफेक्टिव है, गुड फॉर बोथ ऑफ देम। बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिलीफ मिलता है अक्यूट के अंदर। राइट। क्रॉनिक के अंदर इंस्टेंट तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ आपको 10 से 15 दिन पेशेंस रखना है और जिस लेवल का रिलीफ मिलता है और जिस डेप्थ में जाके रिलीफ मिलता है, जितनी लेयर्स तक अंदर तक जाता है वो रिलीफ, वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। जस्ट यू नीड टू टेस्ट इट टू बिलीव इट। तो वही है कि क्रॉनिक में भी बहुत आराम मिलता है, लोगों की दवाइयाँ छूट जाती हैं, Right. लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, खुशी आ जाती है, मतलब जो भी उनके ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बेसिकली मेडिसिन से ब्लॉकेजेस कभी क्लियर नहीं होते, करेक्ट। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। थैंक यू मीनाक्षी जी। एंड हाउ लॉन्ग विल इट रिक्वायर फॉर द क्लाइंट? कितना टाइम लगेगा एक क्लाइंट को सही होने में? ये डिपेंड करता है उसकी ग्रेविटी ऑफ द इशू और जो उसको मेंटल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। जी बिल्कुल राहुल जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कितना पुराना रोग है उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। अनुमान सुजोग के अंदर हम मैक्सिमम 3 महीना लेके चलते हैं अगर रेगुलरिटी के साथ कोई कराता है। रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है 10 सेकंड से। अब अगर मैं 10 सेकंड बोल रही हूँ तो ऐसी कोई दवाई नहीं है जो 10 सेकंड में रिलीफ वर्क करना शुरू कर देती है, लेकिन सुजोग हो या रेकी हो, इंस्टेंट रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और पूरी तरह से उस चीज़ से बाहर निकलने में कुछ समय लग सकता है, हफ्ता से लेकर के 21 दिन तक, 21 से मैक्सिमम 3 महीने, इसमें काफ़ी कुछ ठीक हो जाता है। जनरली किसी भी ह्यूमन बीइंग को 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एक मेंटल रिलेटेड हो गया, एक इमोशनल रिलेटेड हो गया, एक स्पिरिचुअल रिलेटेड है और एक फिजिकल प्रॉब्लम्स है। तो क्या ये थेरेपीज इन ऑल 4 जो पिलर्स हैं उनको हिट कर सकती जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चारों लेवल्स पे काम करती हैं। शुरुआती दौर में लोग ज़्यादातर सिर्फ फिजिकल एलिमेंट्स को ही ध्यान देते हैं और उन्हीं के लिए आते हैं प्रॉब्लम्स लेकर के कि यहाँ पेट में दर्द हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा है या चलने में तकलीफ हो रही है, हड्डियों में आवाज़ आ रही है, या कैंसर को भी लेकर के आएंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि कैंसर हो या कोई भी बॉडीली इशू तो बहुत बाद में आता है। ये तो आप कह लीजिए एक असर है जो बहुत सालों बाद दिखाई देता है, लेकिन शुरुआत तो होती है मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। तो हम एक्चुअली इफ़ेक्ट पे काम नहीं करते, दिखाई तो देगा कि इफ़ेक्ट पे काम कर रहे हैं, बॉडी पर जो इश्यूज वो लेकर आए उधर काम कर रहे हैं, लेकिन काम होलिस्टिक हो रहा होता है। स्पिरिचुअल लेवल पे शुरू करते हैं, उसके बाद हम मेंटल इश्यूज पे काम करते हैं, इमोशंस को हील करते हैं, और जब ये तीनों चीज़ें काम करती हैं तो उसका असर जो है वो बॉडी पे दिखाई। थैंक्स मीनाक्षी जी। वंस पीपल स्टार्ट टेकिंग हीलिंग, शुड दे क्विट टेकिंग देयर मेडिसिन? जैसे एलोपैथी में लोग करते हैं तो आयुर्वेद मिक्स करते हैं, तो लोग कहते हैं कि डोंट मिक्स ट्रीटमेंट्स। नहीं, पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पूरे फेथ के साथ अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। वो विजडम की जहाँ बात आती है वो यही है कि बॉडीली इश्यूज हैं, जहाँ तकलीफ हो रही है, डॉक्टर्स मेडिकल साइंस जानती है कि कहाँ असर होना चाहिए, वो उसको
पूरी तरह से काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच में छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि जब हमने कहा, जैसे मैंने जब शुरुआत में ही कहा कि हाँ हम मेडिसिन देते ही नहीं हैं, तो जब हम मेडिसिन नहीं दे रहे तो कोई क्लैश तो है ही नहीं। तो जब क्लैश नहीं है तो दोनों को पैरेलल चलने में देने में कोई बुराई नहीं है, और ये वाइजली करना चाहिए कि दवाइयाँ सिर्फ तभी बंद हो जब आपने अपने टेस्ट करा करके, पैरामीटर्स चेक करा करके, डॉक्टर से एडवाइस ले ली और डॉक्टर ने आपसे कहा कि अब तो बेटर है सिचुएशन, वो अपने आप कम कर देंगे। किसी डॉक्टर को शौक नहीं होता कि वो ज़बरदस्ती लोगों को दवाइयाँ दें। करेक्ट, थैंक्स मीनाक्षी जी। Can you give healing from a distance, or is the person required to be present in front of you, और ये it is applicable to all therapies, या for some therapies you need to be in person in person treatment? ज़्यादातर सारी चीज़ें डिस्टेंस हीलिंग में, ये जितनी भी मोडालिटीज़ में हम काम कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर डिस्टेंस में अच्छा रिलीफ मिल जाता है। बहुत सारे, मैं कहूँ अगर एक ताला है तो उसको खोलने के लिए चाबियाँ कई तरह के, कई कोड्स हैं, तो दूर वाले कोड भी काम करते हैं और पास वाले भी काम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्सन, वो कहाँ रहता है। अभी जैसे कोविड सिचुएशन है, ज़्यादातर डिस्टेंस हीलिंग ही काम कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आ सकता है, किसी के पास टाइम है तो नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर दूर रह कर के भी करा सकता है, अब बात कर ले। और बहुत सारे तरीके हैं जिनमें हम दूर से मुद्राज मंत्राज दे सकते हैं। सुजोग के अंदर हम रेकी डिस्टेंस हीलिंग भेज सकते हैं, हम थीटा हीलिंग डेफिनेटली बहुत दूर दूर से कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं मेरे। और इसके अलावा क्रिस्टल्स तो अपनी प्रॉब्लम बताएं और क्रिस्टल्स को चैनलाइज करके उनके हिसाब से कि उनको क्या सूट करेगा उसके हिसाब से भेजा जा सकता है, वो अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सामने बैठ कर के ही करना ज़रूरी है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है किसी भी तरह की हीलिंग में। दूर से बैठ कर के भी हो सकता है, डाउजिंग, सब कुछ। ओके, एंड बेटर, मोर इफेक्टिव क्या रहता है, इन पर्सन या डिस्टेंस? पसंद पर है इंसान की, अवेलेबल और जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से। अच्छा, डेफिनेटली हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट, 1-to-1 इज़ ऑलवेज बेटर। लोगों को पसंद भी आता है, अच्छा भी लगता है, खुल के बात कर पाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो हमने सीखा नए दौर के अंदर कि दूर रह कर के भी सब कुछ किया जा सकता है, सो ये लिमिटेशन नहीं है, अब ये कोई बाउंडेशन नहीं रही है। बहुत इवॉल्वमेंट हम सब बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए टेक्नोलॉजी के साथ। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई प्रेफर करता है तो बहुत अच्छा होगा सामने आके कराए। ग्रेट टू हियर मीनाक्षी जी। व्हाट इफ पीपल, एनी पर्सन फील्स नो चेंज इन देयर लाइफ कंडीशन, किसी को कोई चेंज नहीं लग रहा है थेरेपी से, तो क्या कर सकते हैं? इसका सिर्फ एक मोटा बताती हूँ, हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है। जब तक वो इंसान खुद ठीक नहीं होना चाहता, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तब तक वो कितनी भी जगह पे जाकर के कोशिश करता रहे और वो बोलता रहे। हो सकता है कॉन्शियसली वो ये बोले और आप भी सुने, मैं भी सुन रही हूँ कि मुझे ठीक होना है, लेकिन सबकॉन्शियसली जब हम उसे चेक करते हैं, उसका स्कैन करते हैं थ्रू थीटा, तो हमें पता चलता है कि वो उस चीज़ से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। समां वो बहुत कंफर्ट मोड में आ चुका है, वो उसको एक्सेप्ट कर चुका है, वो उससे बाहर नहीं आना चाहता, छोड़ना ही नहीं चाहता। उसको लगता है अगर वो छोड़ देगा तो वो जिएगा कैसे। तो इस तरह के जो डर होते हैं, जब कोई लिमिटिंग बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है इंसान के अंदर कि उसको लगता है कि उसको निकाल देगा तो उसकी शायद एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी, उस केस के अंदर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदरवाइज सब पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो दिखता ही है। और अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो उसे थोड़ा वेट करना चाहिए अपने डिवाइन टाइम का, जब वो खुद चाहता है, वो सोल कि मुझे ठीक होना है, तब वो ज़रूर हो जाएगा। आज के इस मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेडिकल प्रोसीजर्स में जब हम क्रिस्टल या इन सब की बात करते हैं तो हमें जनरली किसी भी आदमी को लेजेंड्स या और मैथोलॉजिकल स्टोरीज उस तरह से लगता है कि कोई क्रिस्टल बॉल में कर रहा है ट्रीटमेंट। हाउ डू यू सी द रेलेवेंस ऑफ दिस थेरेपीज इन द करंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड हाउ लॉजिकली यू कैन बैक इट? सी दिस इज ऑल साइंटिफिक, क्योंकि आजकल तो डॉक्टर्स भी सीख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं जो सुजोग सीख रहे हैं, जो थीटा हीलिंग भी सीख रहे हैं, और जो मानते हैं कि ये तो सभी को पता है कि जो भी चीज़, जो भी मैटर है, चाहे हम हैं, चाहे क्रिस्टल्स हों,
चाहे किसी भी तरह की ये मोडालिटीज़ हैं, सब चीज़ें वाइब्रेशन पे काम कर रही हैं, सब चीज़ें एनर्जी फॉर्म में हैं। तो एक जहाँ पर भी सिमिलैरिटी होती है वहाँ पे काम जल्दी होता है। तो जहाँ पर एनर्जीज मैच करती हैं वहाँ पे काम जल्दी होता है। तो जहाँ पर आपने बोला कि मॉडर्न साइंस की जहाँ तक बात है, तो दवाइयाँ भी इंसान पे तब काम करती हैं जब वो टाइमली लेगा और वो सही पोटेंसी में लेता है, और जो उसका कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का, केमिकल्स का जो कॉम्बिनेशन है, वो अपनी प्रॉब्लम से उसका कोई सिमिलैरिटी है दोनों चीज़ों के बीच में, तभी तो वो हील कर रहा है। उसी तरह से जब हम एनर्जी हीलिंग्स देते हैं तो भी हम भी उसको चैनलाइज करते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, तो डाइजेस्टिव इश्यूज़ को अगर मैं एनर्जी फॉर्म में देखूं तो डाइजेस्टिव इश्यूज़ आते हैं 3 तरह के इमोशन से। एक, जब आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हो, एंगर में रहते हो, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या दबा रहे होते हो, आप उसको सप्रेस कर रहे होते हो। तो जब मैं इसको रिलेशन में लेकर के काम करना शुरू करती हूँ और इसी चीज़ पर फोकस करती हूँ, तो डेफिनेटली जहाँ पे प्रॉब्लम की और मेरी हीलिंग की एनर्जीज मैच करती हैं, वहाँ पर फ़ायदा दिखाई देता है। Correct. और एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है, तो काम तो करेगा ही। तो Correct. ये साइंटिफिकली इसीलिए प्रूवन भी है, इसीलिए लोग सीख भी रहे हैं, और डॉक्टर्स भी मना नहीं करते ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स के लिए। Thanks, Meenakshi ji, for debrief and giving example. How successful have been these procedures in your experience? क्या सक्सेस मिला आपने अब तक? कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया और किस किस जनरली एरिया में आपने ट्रीटमेंट दिया है? राहुल जी, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट कि पिछले 4 साल में मैंने जितने भी लोगों के साथ इन हीलिंग्स पर के थ्रू काम किया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। 300 से ज़्यादा तो सुजोग पेशेंट्स हील हो चुके हैं, और रेनेमे का तो कोई लिमिट ही नहीं, कोई काउंट ही नहीं रखते हम लोग, क्योंकि वो थाउजेंड्स में जाता है। और जहाँ बात आती है थीटा हीलिंग की, तो लंबा प्रोसीजर रहता है एक सेटिंग का, डाउजिंग में भी, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं। कैंसर पेशेंट्स को भी बहुत रिलीफ मिलता है, इंस्टेंट रिलीफ जिसको कहते हैं। और आप किसी भी छोटी प्रॉब्लम से लेकर के बड़ी तक ले लीजिए, कि किडनी स्टोन का इशू ले लीजिए, कोई आया रोते हुए आपके पास कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसे ऑपरेशन कराने का दिल नहीं है। हालांकि मैं ये किसी को भी नहीं कहती कि अगर डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन कराना तो उसको मना कर दिया जाए, बिल्कुल कराना चाहिए। लेकिन अगर इमरजेंसी ऐसी है, किसी ऐसी सिचुएशन में आप हैं कि आप नहीं करा सकते या अभी नहीं हो पा रहा है वो पॉसिबल, तो उसमें जब हम ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं, तो मैंने देखा कि विद इन 1 सिटिंग the stone has come out and the patient was very much relieved. Cancer patients are hopeful, wanting to live, और उनके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी, टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे थे उनकी सोच की वजह से, डर की वजह से, वो सब एलिमिनेट हो रहे हैं और उन्हें भी काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। तो और पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों के इश्यूज रहते हैं, जैसे कि मॉनेटरी इश्यूज हो गए, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, तो इनमें भी आपको विद इन 2-3 डेज ही लोगों के अंदर फ़र्क दिखने लगता है। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, नाम मैं किसी का ले नहीं सकती क्योंकि पर्सनल इश्यूज जाते हैं, लेकिन मतलब चारों ही दिशाओं में बहुत अच्छा काम। Do you teach these therapies as well to any students or prospects who are willing to learn these therapies? जी बिल्कुल, मैं क्लासेस लेती रहती हूँ। डाउजिंग की अभी क्लास होने ही वाली है, और सुजोग भी सिखाती हूँ, थीटा भी सिखाऊंगी, और अभी प्लान नहीं है लेकिन बहुत जल्दी करूँगी। और मेरे पेज पर डिटेल्स रहती हैं हमेशा, कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, और बहुत मज़ेदार हैं ये थेरेपीज़। हर वक्त हर जगह पर हमें आदत बन गई है लोगों से मदद मांगने की, लेकिन मदद तो हमारे अंदर ही है। अगर प्रॉब्लम हमारी है तो सोल्यूशन भी हमारे अंदर है, हमें सिर्फ टेक्निक्स सीखने की ज़रूरत है, और हम घर बैठे बैठे अपना, बच्चों का, बहुत लोगों का, आसपास लोगों का भी हीलिंग करके निवारण कर सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स का।
Thanks, Meenakshi ji. And how, my last question, how people can contact you? Do you have a Facebook page, जी, website, जी, blog, or email, mobile? जी People जी can reach बिल्कुल you? बिल्कुल मेरा फेसबुक पेज है द डिवाइन सेंस के नाम से। आप वहाँ मेरे को कनेक्ट हो Correct. सकते हैं मेरे साथ। व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं अगर बिज़ी हूँ सेशंस में या क्लासेस में तो मैं डेफिनेटली जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करती हूँ, मेरी टीम कर देती है। इसीलिए पूरी तरह से एक्सेसिबल है, कोई भी मुझसे मिलना चाहता है, बात करना Correct. चाहता है, कर सकता है। Facebook, WhatsApp, and email, they are permanently embedded on this video footer. Thanks, Meenakshi ji, for being on the talk show and educating and informing the audience about all these holistic therapies. Thank It you. was a pleasure talking to you and learning about the experiences, and it's a very interesting subject. Thank you so much. Thank you so much for calling me on your show, and it's been completely a pleasure. Thank you. And my mission is to heal people. It makes me very happy when somebody comes and tells you कि उनकी life change हो गई है, आपको बहुत अच्छा लगता है. So my mission is to make people happy and make them empowered. My best wishes to you from Indian Correspondent, and thank you. Thank you.